ગુજરાતી ફિલ્મ વિશ્વગુરુનો ટ્રેલર લોન્ચ. રાષ્ટ્રીય ચેતનાને જગાવતો સિનેમેટિક સંદેશ. ગુજરાતી ફિલ્મ જગત માટે એક અનોખું પાનું બનાવતી અને રાષ્ટ્રપ્રેમને આધુનિક દ્રષ્ટિકોણથી રજૂ કરતી ફિલ્મ વિશ્વગુરુનો ટ્રેલર ભવ્ય રીતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો. આ પ્રસંગે ફિલ્મના કલાકારો, દિગ્દર્શકો, નિર્માતાઓ તેમજ અનેક સિનેપ્રેમીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ટ્રેલર દર્શકોને એકસાથે ગર્વ, વિચાર અને ઉત્સાહથી ભરપૂર અનુભવ કરાવે છે. ટ્રેલર લોન્ચ પ્રસંગે ફિલ્મના પ્રખ્યાત કલાકાર મુકેશ ખન્ના, સોનુ ચંદ્રપાલ, રાજીવ મહેતા તેમજ ફિલ્મના દિગ્દર્શક શૈલેષ બુધાણી અને અતુલ સોનાર, નિર્માતા સતીશ પટેલ અને એક્ઝિક્યુટિવ પ્રોડ્યુસર કશ્યપ કપટા ઉપસ્થિત રહ્યા. ટ્રેલરમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે કેવી રીતે એક રાષ્ટ્ર જ્યારે આંતરિક વિખંડન, ભ્રષ્ટાચાર અને અધૂરી વિચારસરણીઓ સામે ઊભું રહે છે ત્યારે અસલપણે વિશ્વગુરુ બનવા તરફ આગળ વધી શકે છે. શક્તિશાળી સંવાદો, ધારદાર દ્રશ્યો અને સંસ્કૃતિથી ઓતપ્રોત પૃષ્ઠભૂમિ ટ્રેલરને ખૂબ જ અસરકારક બનાવે છે. ખાસ કરીને યુવાનો માટે તે ચેતનાત્મક સંદેશ આપે છે કે રાષ્ટ્રપ્રેમ ફક્ત ભાવના નથી, તે કૃત્ય પણ છે. ફિલ્મનું દિગ્દર્શક શૈલેષ બુઘાણી અને અતુલ સોનાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું અને તેનું નિર્માણ સતીશ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું. ફિલ્મનું લેખન કિરીટભાઈ અને અતુલ સોનારનું છે. ફિલ્મને સુકૃત પ્રોડક્શન અને સ્વસ્તિક મોશન પિક્ચર્સ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી રહી છે. વિશ્વગુરુમાં અનેક જાણીતા કલાકારો મુખ્ય ભૂમિકામાં નજરે પડશે, જેમાં સામેલ છે ગૌરવ પાસવાલા, કૃષ્ણ ભરદ્વાજ, મુકેશ ખન્ના, મકરંદ શુક્લ, શ્રદ્ધા ડાંગર, સોનુ ચંદ્રપાલ, હિના જયકિશન, રાજીવ મહેતા, ધર્મેશ વ્યાસ, જાની ભાવિન, ચૈતન દયા, સોનાલી લેલે અને કુરુશ દેવું. ફિલ્મનું સંગીત પણ એટલું જ ઊંડાણ ધરાવતું છે, જેમાં મેહુલ સુરતીનું સંગીત અને પાર્થ તરપારાના શબ્દો સંગીત પ્રેમીઓને ભાવ વિભોર કરી દેશે. ગીતોને અવાજ આપ્યો છે આનંદી જોશી અને હરિઓમ ગઢવીએ. ફિલ્મનું સંપાદન સંજય સંકલાએ કર્યું. ટ્રેલરમાં દર્શાવવામાં આવેલ દ્રશ્યોને સંવાદ દર્શાવે છે કે ફિલ્મ માત્ર ધાર્મિક અથવા રાજકીય પણ ભાવનાત્મક સ્તરે સામાજિક મૂલ્યો પર પણ પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. દરેક પાત્ર પોતાની ઓળખ સાથે આગળ આવે છે, જે દર્શકને વિચાર કરવામાં મજબૂર કરે છે. દિગ્દર્શક શૈલેષ બુઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે વિશ્વગુરુ માત્ર ફિલ્મ નથી, એ એવા ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જેના પાયામાં સંસ્કૃતિ, સાહિત્ય અને રાષ્ટ્રભક્તિ છે. ટ્રેલર રિલીઝ થયા પછી સોશિયલ મીડિયા અને યુટ્યુબ પર દર્શકોનો જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે. લોકોએ ટીઝરના વિઝ્યુઅલ, પાવરફુલ બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોર અને કન્ટેન્ટ માટે પ્રશંસા વ્યક્ત કરી છે. વિશ્વગુરુ ફિલ્મ ખૂબ જ જલ્દીથી ગુજરાતી સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવા જઈ રહી છે અને રાષ્ટ્રપ્રેમી યુવાનો તથા વિચારશીલ दर्शकों માટે ખાસ અનુભવ બની રહેવા જઈ રહી છે. देखिए, कंसेप्ट के बारे में तो हम काफ़ी बातें पहले भी कर चुके हैं और आपको बता दूं, इवन राजीव भाई ने भी कहा है। इसके पहले अभी आपने गुरुजी को सुना, एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारतवर्ष में रहकर हमें भारतवर्ष को नहीं भूलना चाहिए। सर, आज यही हो रहा है। आज भारतवर्ष में रहने वाला ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ता है, उसको ये नहीं मालूम है कि हमारे हज़ारों हमारे पूरे वर्ल्ड के लोग नालंदा में आते थे, जला दी गई पूरी किताबें को। लॉर्ड मैकॉले आया 1836 में, उसने 6ठी क्लास में इंग्लिश डाल दी और आज हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी बोलो, मैं सामने बोलता हूँ मुँह के ऊपर, बड़े बड़े उद्योगपति भी बोलो, जितने भी पैसे वाले हैं वो यहाँ के स्कूलों में नहीं बैठते, अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड से पढ़ाएंगे, अमेरिका से पढ़ाएंगे, दुनिया भर की टेक्निक करते। क्यों साहब? आप रहते हो भारत में और भारत के ऊपर आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप भारत के रहने के लायक नहीं हो। ये मैं ओपनली बोलता हूँ। इफ़ यू आर इन इंडिया, यू हैव टू थिंक कि उसको कैसे आगे बढ़ाएं। इस फिल्म का मकसद ही यही है कि बिकॉज मैं कई बार मैं कड़वी बात बोल जाता हूँ कि आज मेरे देश का यूथ भटक रहा है। आज मेरे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में भटक रही हैं। आज कंटेंट भटक रहा है। एक ज़माने में तो वो होता था टेलीविज़न, आज तो आ गया मोबाइल के बाद में AI आने वाला है। इसमें यूथ को मौका मिल गया है, अपनी सारे देश तो छोड़िए, अपनी फैमिली को भी भूल जाते हैं, घुस जाते हैं पूरे के पूरे यूट्यूब। और यूट्यूब इतना चमकीला चीज़ है ना, जिसमें आप, मेरे जैसा आदमी भी, व्हाट्सअप आपका मैसेज आता है, आप खाना खा रहे होते हो और खाना खाते के व्हाट्सअप देखते हैं, उठाते हैं और फिर खाना छोड़ के उसको जवाब देते हैं। अरे भाई क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी 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 एडिक्टिव। ये बिगाड़ रहा है हमारे। तो इस फिल्म का मकसद बनाने के पीछे सतीश भाई ने जो सोचा है, बहुत सही वक्त पे सोचा है, क्योंकि किसी ने उठाना था इस बात को। मैं कल ही वीडियो डाल चुका हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रंप को नचाया जा रहा है, मोदी जी को नचाया जा रहा है, दुनिया भर के वो कुछ करते हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। अरे इंजॉय क्यों करते हैं साहब? आपको लगता नहीं कि ये कल आपके घर के भी बीवी बच्चों को नचाएगा? आप क्या करोगे उसको?
ये अच्छा लग रहा है कि ट्रंप नाच रहा है, खमेनी नाच रहा है, चले उधर अमित शाह पकौड़े बेच रहा है, वो आलू बेच रहा है, आपको देखने को तो बहुत अच्छा लगता है, पर डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस प्रगति? ये प्रगति खा जाएगी आपको। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पहले भी लोगों ने विरोध किया है, स्पेशली इन अमेरिका। राइटरों की पूरी टीम निकली थी, एक हफ्ता तक उन्होंने हड़ताल की थी कि अगर ये आ जाए तो हम तो बेकार हो जाएंगे। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलो मुझे शक्तिमान की स्टोरी चाहिए, 3 मिनट में स्टोरी निकाल के देगा सब। इसके बाद फिर प्रोड्यूसर बोलेगा यार आपकी क्या जरूरत है यार, हाँ क्या जरूरत है? सर महाभारत में एक आपकी बहुत अच्छी सी लाइन है जिसके मैं आध्यात्मिक में 2 घंटा बोल सकता हूँ। बोलिए बोलिए। वो लाइन आपकी थी, सूर्य के अस्त होने का समय हो गया है, शरीर से परछाई जब बड़ी होने लगे मैं तो सुना इंसान को समझ लेना आप चाहिए। तोड़ मरोड़ की सुना रहे हैं, मैं आपको नहीं, मैं आपको सीधी सुना सीधी देता हूँ। सीधी सुना। ये जो विश्व गुरु लाइन है आपका फिल्म है, उसमें एक अच्छा सा टैगलाइन है, यह अभी युद्ध हमको शास्त्र से नहीं शस्त्र से लड़ना पड़ेगा। शास्त्र नहीं शस्त्र से लड़ना पड़ेगा। अबे मेरे भाई, उसके बाद आप देखिए इस फिल्म में, मैं दोनों लाइन कर दीजिए सर। परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रहेगा। मैं इस बात को आपने सही टाइम पे उठाया जब मैं बोल रहा था कि अगर सूर्य अस्त हो रहा है तो आपकी परछाई लंबी होती है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीडियम आ रहा है, ये जो सोशल मीडिया आ रहा है, ये मोबाइल का मीडियम आ रहा है, ये अभी इसमें आपकी परछाइयाँ बढ़ रही हैं, आपकी रियलिटी छूट गई है और आप जा रहे हैं दुनिया भर के लोगों को इम्प्रेस करते हैं। वो लड़की अपने यहाँ झुमका लगाती है, यहाँ पर कपड़े पहनती है और फिर बाद में सेल्फी खींचती है, फिर भेजती है, बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो बोलते हैं अच्छी लग रही हूँ, बोलते अच्छी लग रही है। दिस इज़ आर्टिफिशियल, दिस इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि जब परछाई लंबी होती है तो सूर्य के अस्त होने का समय आ गया है। तो हमारे देश में इस वक्त जो प्रगति है, कहीं ना कहीं, जैसे मैंने मजाक से कहा था, मैंने एक बार कहा था, मैंने कहा भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, फिर भी मेरा देश है महान। लेकिन मेरा एक और सवाल है कि सर वो चोर डाकू बेईमान क्यों है, कौन हटाएगा उसको? आप महान थे, महान है, महान रहेगा, पर बीच में जो रुकावटें डाल रहे हैं। इस फिल्म का मकसद ही यही है कि इस फिल्म को देखकर आपको मालूम पड़ेगा कि बाहर के मुल्क की ताकतें हमारे बच्चों को गुमराह कर रही हैं। जैसे आपने देखा होगा अश्लील कंटेंट को लेकर जो डाला जा रहा है आजकल, ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। आपके माफ़ करना, मैं तो इतनी बार प्रतिज्ञा ले चुका हूँ इसलिए मेरी शादी नहीं हुई है पर मुझे बच्चों की चिंता है। शक्तिमान बनकर मैं देश के करोड़ों बच्चों से जुड़ा हूँ। मुझे लगता है कि इन बच्चों को देखने वाले माता पिता नहीं है अभी, इन बच्चों को देखने वाले गुरु नहीं है अभी। गुरु की नहीं सुनते, माता पिता की नहीं सुनते। उनके पेट में दर्द होता है तो विकीपीडिया से पूछते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या लूँ मैं, क्या लूँ? वो बोलते हैं ले ले इनो ले ले। साहब आपका घर है पीछे, आपके परिवार है आपके पीछे, आपके गुरु आपके पीछे, आपके भाई हैं, बहन हैं। सो इस फिल्म में एक बड़ी बात कही है कि 4 स्तंभों पे हमारा सोसाइटी खड़ी रहती है, शिक्षा, फैमिली, धर्म और यूथ। इन चारों को हटाए। जैसे हम कहते हैं कि देखो हमारा जो युग है वो 4 पैरों पर खड़ा रहता है। सतयुग में 3 पैरों पर सत्य रहता है, धर्म रहता है, एक में अधर्म रहता है। सत्य में तो चारों पे रहता है, फिर धीरे आज हमारे 3 पैरों में अधर्म है और 1 पैर के ऊपर हमारा धर्म है। तो वैसे ही क्या हो रहा है कि हमने इन चारों पहियों को उड़ाने की कोशिश हो रही है विदेशी ताकतों की तरफ से। सोरोश जैसे बड़े बड़े लोगों के वहाँ पर डीप स्टेट है अमेरिका में। ये जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ है, जो कुछ भी हमारे यहाँ पर भी होने जा रहा था, इट इज़ बिन फंडेड। It's you people know more than me because it is absolutely not the work of the person, but पैसे मिलते हैं तो आदमी कुछ ना कुछ बन जाता है। उसको रोकने के लिए इस फिल्म में ये बताया गया है कि क्या हम रोक सकते हैं। शस्त्र से तो सर यूक्रेन और रशिया लड़ रहा है, हमास और इजराइल लड़ रहा है। पितामह भीष्म ने भी कहा था युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता पुत्र, समाधान नहीं होता। आज यही बात समझाने की जरूरत है। कितने गोलियां बरसाओगे? मैंने एक बार कहा था मरे हुए को कितना मारोगे यार। जेस्चर्स, आप इशारों से भी बात कर सकते हैं। सो आई थिंक यू विल एंजॉय द फिल्म। इट्स अ मैसेज ओरिएंटेड फिल्म। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। इट शुड बी मेड सक्सेसफुल सो दैट एनिमल जैसी फिल्में ना बने।
ऐसी फिल्में ना बने जिसमें देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसी फिल्में ना बने जिसमें अश्लीलता भरी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म का चलना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये फिल्म जहाँ तक मैंने शूट की है, मैं यहाँ पर हफ्ता भर शूट करके गया हूँ, अच्छे तरीके से बनाई है। डायरेक्टर ने, राइटर ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। सतीश जी का तो जज्बा ही था कि उसके पीछे यही बनाना है, और मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, इनके व्यंगम योगा से जुड़ा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये फिल्म का सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, 1 अगस्त को रिलीज होती है। हम सब की ओर से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 15 अगस्त तक उसको पूरा विश्व तक बेइज्जत पी सकते फिर तो हमारा विश्व गुरु स्वतंत्र हो जाएगा। આ ફિલ્મમાં બહુ અદ્ભુત રોલ છે મારો. આ જે શરૂઆતમાં મેં કહ્યું એ પ્રમાણે કે આ દેશને બરબાદ કરવા માટેના જે પ્રપંચો, જે કાવતરાઓ, જે કોન્સ્પિરસીઝ ઘડાઈ રહી છે, આ દેશ ને નીચે લઈ જવા માટેના જે પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે ચારે બાજુથી, દેશ વિદેશથી, તો એની સામે એક 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 બીડું ઝડપ્યું છે એક વ્યક્તિએ, શસ્ત્રથી નહીં પણ મુકેશજીએ કહ્યું એ પ્રમાણે શાસ્ત્રથી, કે સ્વરવેદ નામનો એક જે ગ્રંથ છે, જે આપણા 4 વેદો છે, સામવેદ, ઋગ્વેદ, અથર્વવેદ અને યજુર્વેદ, આ 4 વેદોનો સારાંશ આ વ્યક્તિએ જે ગ્રંથ જે પ્રમોટ કરવા માગે છે એના વિશેની વાત છે. અને એના દ્વારા આ માણસાઈ શું હોવી જોઈએ, માણસાઈના મૂલ્યો, સંસ્કાર, આ વિશેનું. એક વસ્તુ છે કે એન્ટરટેનમેન્ટ એટલે માત્ર હસાવવું, ગલગલિયા કરવા કે આઇટમ સોંગ્સ હોય એવું નથી. એમાં 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 એક સંદેશ પણ હોઈ શકે, એક મેસેજ હોઈ શકે. સો દેટ ઇઝ વાય ધીસ ફિલ્મ ઇઝ વેરી હાઈલી ક્વોલિટેટિવ અને વેરી થોટફુલી મેડ ફિલ્મ. સવિતર દુરિતાની પરાશુવ યદ ભદ્રમ તન્ન આસુવ. प्यारे देशवासियों, आज की यह संध्या अत्यंत ही आध्यात्मिक है कि हम सब थिएटर में बैठकर विश्व गुरु फिल्म का जो ट्रेलर है उसका लॉन्च हुआ है। यह अपने आप में बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। यह फिल्म राष्ट्र प्रेम की भावना से ही रची बसी है। हम सब भारतीय हैं। हम भारत में रहकर भारत से दूर ना हो। हमारी संस्कृति विश्व की आदि संस्कृति है, विश्ववारा संस्कृति है। अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के साथ हम अपने जीवन का विकास करें। भारत में रहकर भारत को ही भूल न जाएं। इसीलिए संपूर्ण देशवासियों को अपने राष्ट्र प्रेम के प्रति कर्तव्य एवं दायित्व के बोध से जागृत करने के लिए सुकृत प्रोडक्शन के द्वारा यह विश्व गुरु फिल्म बनाई गई है। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञान से ही हमारी पहचान संपूर्ण विश्व में है। हमारी संस्कृति के कारण, महापुरुषों के कारण ही भारत की पहचान संपूर्ण विश्व में है। आध्यात्मिक ज्ञान के ही कारण, संस्कृति के ही कारण भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और विश्व का गुरु रहेगा। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ निरंतर आगे बढ़ने की सद्प्रेरणा चाहिए, क्योंकि भारत देश पर बहुत लंबे कालखंड तक विभिन्न प्रकार का प्रभाव रहा है। तो हम अपनी संस्कृति की मूल जड़ों से जुड़े रहें, भारतीयता से जुड़े रहें, आध्यात्मिकता से जुड़े रहें और राष्ट्र प्रेम की भावना हम सब के भीतर निरंतर प्रज्वलित रहे। राष्ट्र पुरुष है। ये भूमि हमारी भारत की भूमि कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये हमारी संस्कृति है। और राष्ट्रीय प्रेम की इस भावना से ओतप्रोत होकर राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा भी इस समय गतिमान है, जिसका प्रारंभ 29 जून को श्रीनगर के लाल चौक से तिरंगा फहराकर किया गया है। और यह यात्रा
निरंतर गतिमान है। 40,000 किलोमीटर सड़क मार्ग से दूरी तय की जानी है और इसी दरमियान आज की यह जो शाम है जब हम सब विश्व गुरु फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं, मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखता हूं कि यह फिल्म बहुत ही लोकप्रिय होगी। अधिक से अधिक व्यक्ति इस फिल्म को अवश्य देखें, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हों। भारत माता की जय। भारत माता की जय।